Good morning everyone. This is Simpy. Welcome to EVS class. Today we will revise chapter 9. I share my world with them. So let's get started. We see different kinds of animals around us. First, we will learn about the movement in animals. Animals move from one place to another place with the help of legs, wings, tails. Animals, they have also different kinds of feet. All of you know this one. Like some animals, they have paws. All of you know about the paws. Paws means padded feet. Like cats, dogs, lions, tigers, they have padded feet. They have paws. You have to learn here the names of the animals. Those have paws. आपको यहाँ पे याद रखना है कि किस एनिमल्स के पास paws होता है, padded feet होता है. Padded feet allow them to move silently. तो silently move करते हैं और एनिमल को पता नहीं चलता कि ये एनिमल आ रहा है. That's why such types of animals have padded feet. Some animals have hooves. All of you know about the hooves. अब आपको hooves के बारे में जानना है. They are like toenails. Toenails होता है. Hooves allow animals to walk for long distances. Long distance को cover करने के लिए animals के पास क्या होता है? Hooves. Like horse, cows, camels. They move. They walk for long distance. Long distance cover करते हैं, move करते हैं. That's why they have hooves. उनके पास क्या होता है? Hooves होता है. All of you have learned the examples that those animals have paws, those animals have hooves. किसके पास paws होता है जो silently move करता है? Other animals को पता नहीं चले कि tiger आ रहा है, lion आ रहा है. तो lion, tiger, cat, इन सब के पास किस टाइप का feet है? Paws है, padded feet है. और जो long distance cover करते हैं उनके पास hooves है. Like camels, horse, cows, they have hooves. All of you know about the paws and hooves. और birds, they have 2 feet. Birds के पास क्या होता है? Feet होता है. And their wings help them to fly. Birds, they move from one place to another place with the help of the wings. Birds के बारे में तो आपको मालूम है ना कि वो wings के help से move करते हैं. Birds के पास भी feet होता है and their feet are called claws. Claws कहते हैं. With the help of the feet, they also move from one place to another place. किसी चीज को hold करने में उनकी help करता है. Perch करते हैं. They sit on the branch of the tree. Tree के branch पर बैठने में help होती है. Snakes, they slide on the ground. Snake क्या करते हैं? Slide करते हैं ground पे. Centipedes and caterpillars, they have many feet. उनके पास बहुत सारे feet है. किसके पास? Centipedes और caterpillars को that help them to move. और वो उसकी help करते हैं move करने में. Centipedes और caterpillars को. तो अभी आपने learn किया है about paws. किस animals के पास paws है, किस animals के पास hooves है. और birds के बारे में कि उनका जो feet होता है, birds they have 2 feet. Claws कहते हैं उसका क्या काम है. Then we learn that birds move from one place to another place with the help of the wings. और centipedes, caterpillars के पास many feet होते हैं that help them to move. In this topic you have to learn this one, right? Then now come on the next topic. How do animals use their tails? Animals के पास tails होता है. उसका क्या use है? You have to learn this one here. Monkeys, they have tails. They swing from one tree to another using their tails.
आपने मंकी को देखा होगा, वन ट्री से दूसरे ट्री को ना स्विंग कर जाता है, क्या किसकी हेल्प से? टेल की हेल्प से। एंड देयर टेल्स ऑल्सो हेल्प देम टू बैलेंस देयर बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। बर्ड्स एंड फिश दे यूज देयर टेल्स टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो मूव करते हैं बर्ड्स और फिश किसके हेल्प से? टेल की हेल्प से। एंड डॉग्स शो देयर अफेक्शन बाय वेगिंग देयर टेल्स, जब आप डॉग्स को लव करोगे तो आपको देख करके अपना टेल को क्या करेगा? वेग करेगा, मूव करेगा ऐसे। कैट्स शो देयर एंगर, जब कैट्स को गुस्सा आता है ना तो कैट्स दे रेज देयर टेल्स, अपने एंगर को शो करने के लिए वो रेज करते हैं, उठाते हैं टेल को। तो नाउ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ टेल्स। रिवीजन हो गया, ऑल ऑफ यू हैव रिमेम्बर्ड, याद हुआ आपको कि डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट काइंड का यूज है टेल्स का। मंकी टेल के हेल्प से स्विंग करता है, बैलेंस करता है बॉडी को। बर्ड्स एंड फिश वो मूव करते पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डॉग्स अपना लव शो करता है, अफेक्शन शो करता है। और कैट्स एंगर शो करते हैं टू रेज देयर टेल्स। All of you have learned about the uses of tails. Now come on the next topic. Animals are our friends. Animals क्या है? हमारे friends हैं. We also get so many things from animals. Animals are very important for the environment. We must not tease them. Animals को tease करना चाहिए? No. उनको bother नहीं करना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए। एंड वी शुड प्रोवाइड देम इनफ फूड। और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? वेटनरी डॉक्टर के पास। राइट, ऑल ऑफ यू हैव लर्न्ड। देन कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, बर्ड्स। There are so many different kinds of birds. Different kind of birds, they have colorful feathers, different types of beaks and claws. सबके अलग अलग टाइप्स के बीक्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, फेदर्स होते हैं। उनका साउंड डिफरेंट टाइप का होता है, सिमिलर नहीं होता, सब डिफरेंट होता है। तभी तो आप आइडेंटिफाई करते हो ना कि दिस वन इज क्रो, दिस वन इज कुकू, दिस वन इज स्पैरो, पिजन। आप देख के बताते हैं क्योंकि उनके जो फीचर्स है, बीक्स है, वो अलग है। आपको क्लॉज डिफरेंट टाइप का मिलेगा, फेदर्स डिफरेंट टाइप का मिलेगा, साउंड डिफरेंट टाइप का मिलेगा। इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, आपने लिसन किया था ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। I conducted one activity for you about the sounds of birds. Birds, they have different types of sounds. Eating habits में उनके क्या होते हैं? Different होते हैं। तो here you have to learn about the eating habits of birds. Like worm eating birds. Some birds, they eat worms. Worms खाते हैं, like robins. Insect eating birds. Birds like woodpeckers. Warblers eat insects. क्या खाते हैं वो? Insects. Seed eating birds, sparrows, they eat seeds. आपने देखा होगा उनको ना, wheat खाते हुए, rice खाते हुए। Then fish eating birds, कुछ birds fish भी खाते हैं, like eagles, they eat fish. Nectar drinking birds, like hummingbirds, they drink nectar. फ्रूट्स भी बर्ड्स खाते हैं, लाइक मैकस, पैराकीट्स मीन्स पैरट्स, दे ईट फ्रूट्स। तो यू हैव टू लर्न अबाउट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। देन कम ऑन द फेदर्स। अबाउट द फेदर्स, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स। तो उनका डिफरेंट काइंड का फंक्शन भी होगा। राइट?
फर्स्ट है बॉडी फेदर्स. बॉडी फेदर्स. अब इसका क्या फंक्शन है? बॉडी फेदर्स कवर मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द बर्ड. जो बॉडी है बर्ड का उसको कवर करता है, इस रीजन से इसका नाम ही बॉडी फेदर्स. बिकॉज बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड्स और प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, कोल्ड एंड हीट. रेन, कोल्ड और हीट से उसको प्रोटेक्ट करता है. एंड दीज फेदर्स ऑल्सो गिव शेप एंड कलर टू द बर्ड. तो आपको नेम से याद रखना है, बॉडी फेदर्स है, इट मीन्स किसको कवर करता है? बॉडी को कवर करता है. किसके बॉडी को? बर्ड्स के बॉडी को. राइट. देन कम ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ फेदर्स. नेक्स्ट वन इज फ्लाइट फेदर्स. फ्लाइट फेदर्स मीन्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई. बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करता है. डाउन फेदर्स. डाउन फेदर्स हेल्प बर्ड्स टू कीप देम वार्म. बर्ड्स को वार्म रखने में हेल्प करता है डाउन फेदर्स. बॉडी फेदर्स बॉडी को कवर करता है. फ्लाइट फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई. डाउन फेदर्स कीप देम वार्म. ऑल ऑफ यू हैव लर्न्ड दिस वन. The next topic, insects. Now you have to learn about the insects. Insects, how many legs do insects have? Insects have 6 legs and 2 antennae. How many antennae do they have? 2. आपको ये learn करना है. Then their body is divided into 3 parts: head, thorax and abdomen. They hatch from eggs. And you have to learn the examples of the insects. Those can fly and those cannot fly. Can fly dragonflies, butterflies, moths and mosquitoes. ये insects fly कर सकते हैं और कुछ insects fly नहीं कर सकते हैं, like ants and caterpillars. You have to learn here this one. And now you have to learn about the diseases. Mosquitoes feed on the blood of different kinds of animals. Mosquitoes क्या करते हैं? suck करते हैं blood and their bites cause diseases like dengue and malaria. जो आपको dengue और malaria disease होता है वो किसके reason से होता है? Mosquitoes के bite करने से. तो आपको याद करना है, you have to learn the names of disease. Malaria and dengue. मलेरिया और डेंगू डिजीज होता है मस्कीटोज के बाइट करने से. एंड दे ब्रीड इन स्टैगनेंट एंड डर्टी वाटर. जो आपका स्टैगनेंट वाटर होता है, जो वाटर मूव नहीं करता, डर्टी वाटर में ये मस्कीटोज ब्रीड करते हैं. दैट्स व्हाई वी शुड नॉट कीप स्टैगनेंट वाटर. कहीं भी डर्टी वाटर है तो आपको डर्टी वाटर आसपास में नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज मस्कीटोज ब्रीड करेगा और उसके बाइट करने से कौन सा डिजीज होगा? मलेरिया एंड डेंगू. हाउस फ्लाइज जो होते हैं ना, उनसे भी डिजीज होता है, लाइक डायरिया एंड टाइफाइड. टाइफाइड, डायरिया एंड टाइफाइड किसके रीजन से होता है? हाउस फ्लाइज के रीजन से.
बिकॉज दे पिकअप जर्म्स फ्रॉम डर्टी प्लेसेस, वो जर्म्स को पिकअप करते, डर्टी प्लेस पे बैठते, वहाँ से जर्म्स लिया, फिर वो आपके अनकवर्ड फूड पे, जो फूड आपका कवर नहीं है उस पे बैठते हैं, फिर आप उसी को खाते हो, तो जर्म्स कहाँ चला गया, बॉडी के अंदर, और उसके रीज़न से डिजीज़ हो जाते हैं लाइक डायरिया एंड टाइफाइड। तो आपको ये लर्न करना है डिजीज़ का नेम कि हाउस फ्लाइज के रीजन से कौन सा डिजीज़ हुआ, डायरिया एंड टाइफाइड। मस्किटोज के बाइट करने से कौन सा डिजीज़ हुआ, मलेरिया एंड डेंगू डिजीज़। Cockroaches also carry bacteria which cause various diseases like food poisoning. कॉकरोच भी अपने साथ क्या पिक करता है, जर्म्स को पिक करता है, आपके अनकवर्ड फूड पे है, फिर आपने वो फूड खाया तो उसके रीजन से क्या होगा, बॉडी में प्रॉब्लम होगी, फूड पॉइजनिंग होगी, आपको वॉमिटिंग होगा, स्टमक पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो सच टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी dangerous for us. We should keep food covered. हमें फूड कैसे रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, अनकवर्ड फूड नहीं रखना चाहिए। रैट्स दे ऑल्सो स्प्रेड डिजीज लाइक प्लेग। रैट्स के रीजन से भी कौन सा डिजीज होता है, प्लेग डिजीज होता है। तो यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ डिजीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू द इंसेक्ट्स, जो किसके रीजन से होते हैं, इंसेक्ट्स के रीजन से होते हैं। एंड यू हैव टू लर्न द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, रीड आउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, एंड वन थिंग इज हियर मोर, you have to learn that and you have to learn about the endangered animals. It means endangered animals are found in very small numbers and whose population is decreasing day by day. एंडेंजर्ड एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही, उनका जो नंबर से कम है और उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे करके कम हो रही है। तो आपको इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन हैज़ बिकम एन एंडेंजर्ड स्पेसिस। यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दिस बर्ड। ये एंडेंजर्ड स्पेसिस है क्योंकि इसका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट विच वन इज एन एंडेंजर्ड स्पेसिस। तो यू हैव टू select this option, Siberian crane. So you have to learn the name of this bird. That's it for this chapter. आपको इतना कुछ learn करना है assessment 2 के लिए। I hope we have covered all the topics of this chapter, important topics for the assessment 2. Now it's time to wrap up the session. Thank you. Have a good one.